ऐसे रख दें, पीछे ही आ जाएंगे बैकग्राउंड में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है हेल्थ पर चर्चा। चर्चा करने में हम इंडियन तो बहुत माहिर हैं, लेकिन जब बात सेहत की हो तो हम कंजूसी कर जाते हैं। यही वजह है कि हेल्थ और लाइफस्टाइल पर हम अक्सर गलतियां करते हैं। हमारी कौन सी आदत कब एडिक्शन का रूप ले लेती है और वह हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, इस बात से हम अनभिज्ञ रहते हैं। ऐसा इसलिए कि हम खुलकर स्वास्थ्य पर स्वस्थ चर्चा नहीं करते। हम अब हमने ये बीड़ा उठाया है। एशियन कोalition फॉर हेल्थ एम्पावरमेंट को हमने तैयार किया है और इसके जरिए हम हेल्थ पर चर्चा किया करेंगे, जिसमें हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स आपको न सिर्फ हेल्थ टिप्स देंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए क्या करना चाहिए और सबसे जरूरी क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानकारी के अभाव में अक्सर लोग गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। हमारा ये शो यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव चलता रहेगा अगले 1 घंटे तक, और इसे दुनिया में कहीं से भी बैठकर देखा जा सकता है। तो चलते हैं सबसे पहले अपने को होस्ट जो इस समय अमेरिका में बैठे हुए हैं, मिस्टर आर शंकर के पास, जो हमें बताएंगे कि एशियन कोalition फॉर हेल्थ एम्पावरमेंट क्या है और आज कौन कौन से एक्सपर्ट शो में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि वो इस समय अमेरिका में हैं, तो उनको गुड इवनिंग सर। ओवर टू यू मिस्टर शंकर। Good evening. Good evening. Thank you, Kishore. Namaskar and good morning to everyone in India. I am Shankar Raj, the president of Heal Foundation. Now, addiction remains an ongoing challenge, significantly affecting physical, mental, and social health. To tackle this issue, the Asian Coalition for Health Empowerment, or AIG, an initiative by the Indian Medical Academy for Preventive Health, presents Health for Charcha, an online health show. The Asian College for Health Empowerment seeks to create a movement centered around raising awareness of the harm caused by these addictions. It is firmly rooted in the belief in and respect for rights of individuals struggling with tobacco, alcohol, drug abuse, and the silent menace of smartphone addiction. This platform aims to empower people with reliable health information, and especially about various types of addictions, through insightful discussions, expert advice, and informative content. To speak more on understanding the impact of lifestyle choices on Health per Charcha, we have with us Ms. Gagandeep Kaur, Director of Unique Psychological Services and an expert in clinical psychology. Also joining her is Dr. Anil Chaturvedi, a renowned name in the field of healthcare. He's a senior physician in the field of medicine and literature. Dr. Chaturvedi is the medical advisor of Asian Coalition for Health Empowerment. He is the recipient of the prestigious BC Roy National Award and many more. Also, we have with us Ms. Divya Prakash, a wellness prana, wellness therapist, and founder of wellness venture Metamorphosis. She is an accredited dietitian, nutrition counselor, certified psychological counselor, and a deep sleep mentor and qualified yoga practitioner. Last but not the least, we have Sandhya Rani, a senior nutritionist at the Asian Coalition for Health Coalition. I now invite Dr. Anil Chaturvedi to make his presentation. Welcome, Doctor. Mr. Shankar and all the panelists. Today's topic health पर चर्चा एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज लोगों में जागरूकता की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना, सजग रहना हमारी आज की जरूरत है। तो the topic for my today's talk is impact of lifestyle on health
and I will add, the addiction part also in it, because I think the psychologist is there, the nutritionist is there. They will talk on that. Slide दिखाना. So पहली slide, first slide. As सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. May all be happy, may all be healthy, may people have well-being of all in mind, may nobody suffer in any way. सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें, सभी में एक दूसरे के कल्याण की भावना हो, किसी को कोई कष्ट न हो. ये ऋग्वेद का वेद है और आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व बताया गया था. और आज जब हम एडिक्शन की बात कर रहे हैं, एसडीजी गोल्स की बात कर रहे हैं, तो उसका मुख्य ध्येय 2015 में जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बताया, मुख्य ध्येय भी यही है कि वेलनेस एंड हेल्थ फॉर ऑल लिविंग बीइंग. हमारे वेद, हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं इतनी प्राचीन है कि शुरू से ही हम इस विषय पर सारी दुनिया को ये ज्ञान देते रहे हैं. इसलिए पुराने जमाने में भी आज भी भारत को इस मामले में विश्व गुरु कहा जाता है. तो health is a complete physical, social, mental, and spiritual well-being of an individual. In nature scheme of things, there is birth and death, but there is no disease. This ease, जब आदमी अपने से स्वयं से ईज में नहीं रहता, तब वो डिजीज में पैदा करता है. इसका मतलब है कि सम प्लेस अदर उसने कहीं ना कहीं गलती की है, और गलती है उसकी लाइफ स्टाइल में, उसके जीवन जीने की शैली में. Long working hours and kill, spending about 11 hours a day in office, up heart disease by 67%. On the run, the desire to set goal. आज सारी दुनिया में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आज आदमी पागल है, काम के पीछे पागल हैं, उनको समय नहीं है, और अपनी न खाने का, न पीने का, न बैठने का, सोने का कोई समय नहीं है. भाग दौड़, जीवन ऐसा मशीन की तरह हो गया, हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं. इसलिए wellness ward as workplace. 40% of corporate India do not have any wellness program. Employees are affected with lifestyle disease. 77 employees are prone to distress. And this is the modern lifestyle. Lack of time, no food, stress, no dietary fiber in the. And today the price of success is very high. Hypertension, cervical insomnia, migraine, asthma, diabetes, coronary heart disease, carpal tunnel syndrome, and all these things. So, हर आदमी आज सक्सेस के पीछे भाग रहा है, लेकिन सक्सेस के पीछे भागने में अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखिए. स्वास्थ्य को तिलांजलि देकर अगर आप सक्सेस ले रहे हैं, और आप अगर आपको हार्ट अटैक हो गया अगर 55-50 साल की उम्र में, जब आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो आपको फिर सफल जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं, सफलता कैसे मिलेगी. इसलिए जरूरी ये है कि हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें. और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आज की मेरे लेक्चर की. लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ, मतलब शरीर, ये अल्कोहल, डाइट, धूम्रपान, lack of physical activity, stress, and pollution, which is very rampant at the moment today in Delhi. तो अगर restricted diet की बात लें, तो देखिए आहार में हम उसमें अगर गड़बड़ी है, एक भी इसका लाइफ स्टाइल में, आपकी जीवन शैली में एक भी अगर कारण ऐसा है जिससे आप आहार जंक फूड लेते हैं, तो उससे क्या क्या बीमार होती हैं. हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, कैंसर हो सकते हैं, और बीमारियां हो सकती हैं. इसके अलावा अगर आप शराब पीते हैं, तो शराब से भी हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज, लिवर सिरोसिस, कैंसर, पेनक्रियाज. टोबैको, आज दुनिया में यही, टोबैको से भी लंग कैंसर, हार्ट डिजीज,
फेफड़े का बीमारियां, श्वास की बीमारियां, कैंसर और लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ये सारी बीमारियां, देखिए सेप्टिक लगा हुआ है तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से भी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, कैंसर, सब बीमारियां। एक बात, स्ट्रेस, अगेन लैक ऑफ फिजिकल, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां। और पोल्यूशन से तो सांस की बीमारियां, दमे की बीमारियां, ये सब बढ़ती हैं। ये आज जो मेन विषय है कि अल्कोहल, सिगरेट, शराब, स्मार्टफोन का एडिक्शन, ये चीजें समाज को, हमको हानिकारक प्रभाव से, स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव डाल रही है। एक सिगरेट पीने से कम एक आदमी की आयु 12 वर्ष कम हो जाती है। लंग कैंसर, हार्ट का कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां होती हैं। तो हमको आज अपने युवा को बताना है कि धूम्रपान या स्वास्थ्य, एक चीज उनको चूज करनी है। या तो स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें या धूम्रपान, केवल एक चीज को चुने। इसलिए जरूरी है कि अगर हमें स्वस्थ रखना है, सुखी रहना है, समाज को समृद्ध रखना है, तो हम धूम्रपान को तिलांजलि दें। इसी तरह अल्कोहल एक बहुत ज्यादा व्यापक रूप से समाज में होता है, लेकिन इसका सब दुष्प्रभाव है और हमको समाज को अल्कोहल मुक्त भारत बनाना चाहिए। क्यों कि फर्स्ट कहा गया है कि मैन टेक्स द अल्कोहल, देन अल्कोहल टेक्स द अल्कोहल, एंड देन अल्कोहल टेक्स द मैन। और अल्कोहल के भी बड़े दुष्प्रभाव हैं। आज 16, 17, 18 साल से लेकर 40 साल तक के बच्चों में ये प्रचलन बहुत बढ़ गया है। तो इसलिए हमको इसके दुष्प्रभाव, परफॉर्मेंस में अफेक्ट पड़ता है अल्कोहल से, उन बच्चों की एकाग्रता भंग हो जाती है, वो अपने अध्ययन पर ध्यान नहीं दे पाते, और हाथ पैरों में कंपन, अगर लगातार सेवन करें, हाथ पैरों से कंपन उनका हो जाता है। तो जरूरी ये है कि हम इन सब मादक पदार्थों का, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो शराब है, इन सब से अपनी मुक्ति पालें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अगर स्वास्थ्य नहीं रहते, द इंडियन डाइट, द गुड, बैड एंड द, और ये देखिए फैट फॉर थूट, आज सब बच्चे स्नैक्स बहुत ज्यादा लेते हैं खाने के पहले, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मोटापा एक आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम मोटापे को भी कम करें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आहार और फिजिकल एक्टिविटी उतनी ही जरूरी है। हमारे सबसे ज्यादा, अगर आज देश में कोई एक किसी के यहाँ भी आप जाएं तो नाश्ते में सबसे ज्यादा चीज परोसी जाती है, वो है आपका समोसा। और ये स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। इसकी कैलोरी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसमें जो ट्रांस फैट्स हैं वो सबसे ज्यादा खराब कोलेस्ट्रॉल है, उससे हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा बढ़ती है। इसलिए कृपया समोसे को अपने आहार से, अपने नाश्ते से बिल्कुल अलग कर दें। देखिए, whenever I feel like I lie down until the feeling passes. So आलस्यम मनुष्याय शरीर हास्तो महा हानि रूपो, अर्थात आलस्य मनीष के लिए, शरीर के लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण है। इट इज अमेजिंग हाउ मच व्हाट यू ईट गोज टू द वेस्ट। एंड गर्थ ऑफ ए नेशन, ये इसमें लिखा हुआ है। इंडिया टुडे में आज 10 साल पहले आया था कि आज मोटापा बढ़ रहा है। दिल्ली में हमने एक बच्चों के ऊपर 12 से 18 वर्ष के बच्चों के ऊपर जो प्रशिक्षण, जो अनुसंधान किए हैं, बच्चों की शारीरिक जांच की है, उससे साफ पता लगता है कि इन बच्चों में भी मोटापा बढ़ रहा है। कुछ लोगों में 10 से 15% ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की संभावना दिखती है। How to murder your husband? Stuff his stomach with fatty food. Encourage him to flirt with lady nicotine. Help him put on excess weight. Never buy fresh fruits or vegetables. Encourage him to drink alcohol. Nag him and push up the stress. Make sure he does not do much exercise and buy lots of sugary foods. So, it is sometimes it take contrast to appreciate this study and the familiar. It is just in a. So, diabetes, blood pressure. अगर किसी को और वो सिगरेट पीता है तो उसकी हार्ट अटैक की संभावना 16 गुना हो जाती है। अगर उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम है, खराब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो 32%, और अगर उसको मोटापा है तो एक 64% उसकी संभावना हार्ट अटैक की बढ़ जाती है। इसी तरह
ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है और हमें अपना ब्लड प्रेशर का माप करना चाहिए। 120/80 शुड बी योर ब्लड प्रेशर। एंड आज धूम्रपान से कहिए, शारीरिक श्रम की वजह से कहिए, आहार, 7 करोड़ इंडियंस फ्रॉम हार्ट डिजीज, 50 लाख people die from heart disease in India every year. 28% people who die of heart disease are less than 63 years old, and 80%, 50% of people who have a heart attack have never been any symptoms. 60% heart attack occurs in people with blockage of, and 70%, how much your artery has blocked before symptoms of heart disease arrives, and 60% of plaques are unstable. So therefore ये जरूरी है कि हार्ट अटैक से हमें अगर बचना है तो हमको ये जो खतरे हैं, धूम्रपान है, सिगरेट है, शराब है, इन सब से बचना है और शारीरिक श्रम जरूर करना है। आज जरूरत इस बात की है कि हम हेल्थ चेकअप जरूर करें। आज होता क्या है कि हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं, जब हम कोई बीमार हो जाते हैं, हमको डॉक्टर के पास जब जाना चाहिए जब आप स्वस्थ हो। क्यों? आप देखिए, आप अपना ड्राइंग रूम है, घर है, उसकी आप मरम्मत करते हैं और उसमें शायद मुश्किल से 8 घंटे पूरे दिन में शायद बैठते होंगे। इसी प्रकार आप अपने कार की रिपेयर कराते हैं, साल में मेंटेनेंस कराते हैं 4 से 6 बार, और उसमें 5-7 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिल जो 24 घंटे में 1 लाख बार धड़कता है, 1 बार लाख बार धड़कता है, और पता नहीं आपकी 70 या 80 साल की उम्र तक कितने करोड़ों बार वो धड़क चुका है, उसका भी हम ध्यान रख लें। हर आदमी को आज स्वस्थ रहना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे नंबर्स क्या हैं, हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, 120/80 होना चाहिए, हमारी लिपिड प्रोफाइल कितना है, हमें डायबिटीज तो नहीं है। तो अगर हम इन चीजों का शुरू से ही ध्यान रखेंगे तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। इसलिए आज जरूरी है कि हम अपना हेल्थ चेकअप कराएं। किचन इज द हाइपोथेसिस ऑफ द, मतलब ये है कि आज के जमाने में जो किचन है आपका, वो औषधि गृह है। मतलब आप घर में अगर स्वस्थ आहार रखेंगे, स्वस्थ चीजें रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा, और अगर ऐसी चीजें रखेंगे जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं तो आपका स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हर घर में जो आपका रसोई है वो आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वर्क इज द ग्रेटेस्ट एनाल्जेसिक, सोरपोटिक, स्टिमुलेंट, ट्रैंक्विलाइजर, नार्कोटिक एंड इवन एन एंटीबायोटिक। तो हमको काम में लग्न होना चाहिए, न गरज किसी से न वास्ता, मुझे काम ही अपने काम से, न तेरी जिक्र से, न तेरी फिक्र से, न तेरी शाम से, तेरे नाम से। बी फोकस्ड। बच्चे हैं, बड़े हैं, एकाग्रता से, मनन से, लगन से जो भी आप काम करें वो काम करें, और अगर ये काम आप करेंगे तो आप इन दुर्व्यसनों से बचेंगे। फनी थिंग्स हैपन, हैव बिगन टू लाफ, मतलब आप हमको हंसना चाहिए, प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। लोगों को, जितने लोगों को हम हंसा सकते हैं, खुशी का एक लम्हा भी बहुत है। लोग जीने का सलीका ही कहाँ रखते हैं। तो हमें खुशी, स्वयं को प्रसन्न रखें और ऐसे काम करें जिससे आसपास के वातावरण में प्रसन्नता के अनुभव हो, लोग खुश रहें। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा भारतवर्ष लगभग 147 देशों में से 135 से 36 नंबर पर है। तो हमको प्रसन्न रहना चाहिए और लोगों को प्रसन्न करने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप स्वस्थ जीवन रहना चाहते हैं, हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, तो अगर आप सिगरेट बंद कर देते हैं तो 70% आपकी हार्ट अटैक से बचाव हो सकता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं तो 60% बच सकते हैं। अगर आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं 30% आपको हार्ट अटैक से बचाव। फिजिकल एक्टिविटी, मतलब 2000 कैलोरीज पर वीक अगर रहें तो 45% आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। बॉडी वेट अगर ठीक है तो 35%। इंक्रीजिंग और ईटिंग 5 फ्रूट्स एंड सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स। हम आम भारतीय आज 150 ग्राम ये फ्रूट्स और वेजिटेबल खाता है। हमको कम से कम 500 ग्राम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रतिदिन खाने चाहिए। और थोड़े से 30 से 50 ग्राम नट्स खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए।
अल्कोहल बंद कर दें 25%, एंड एस तो अगर ये सारे चेंज करेंगे तो हम 96% अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। जैसा कि मेरा विषय था आज का, इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ ऑन लाइफ स्टाइल, तो लाइफ स्टाइल डिजीजेस, चेंजेस इन हेल्थ। तो अगर हम इन चीज, यही हमारे जीवन पद्धति है, अगर हम सिगरेट छोड़ दें, शराब छोड़ दें, आहार हमला ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, तो आप 96% अपने हार्ट अटैक से अपनी रक्षा कर सकते हैं। एंड इसके लिए क्या जरूरी है, चाहे आप कोई भी नशा करते हो, ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्रिएट न्यू मिरेकल्स देन एनी वंडर ड्रग। आपकी इच्छा शक्ति, आपके सोच को मोच नहीं आनी चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, आपका विवेक ऐसा हो कि आपको भले बुरे का ज्ञान हो, आपको यह पता होना चाहिए कि ये बुरी आदतें मेरे स्वास्थ्य के लिए ये अभिशाप हैं, इसलिए मुझे इनसे दूर रहना चाहिए। God gave us the gift of life. It is up to us to give ourselves the gift of living well. भगवान ने हमें जीवन दिया है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उसको, जीवन को कैसे सुदृढ़ रखें, सुंदर रखें। और सबसे ज्यादा आप न किसी डॉक्टर ऊपर निर्भर निश्चित रहिए, न किसी और के ऊपर निर्भर रहिए। आपको अपने ऊपर भरोसा बनाना है। आप कोई भी नशा, सेल्फ हेल्प, अपने इच्छा शक्ति को प्रबल बनाना है, दृढ़ संकल्पी बनना है, क्योंकि किसी ने कहा है, नो वन कैन नोज बेटर यू देन योरसेल्फ, नो वन कैन ईट फॉर यू, नो वन कैन लूज वेट फॉर यू, no one can think for you, no one can stop bad habits for you, no one can develop good habits for you, no one can take medications for you, only you, but only you can change yourself. खुद ही को कर बुलंद, अपना खुना बनाने से पहले बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। एंड अगर जिसको जिन सबको मैं कहता हूं धूम्रपान छोड़ दें, तो मैं उनसे कहता हूं कि ये प्रार्थना जरूर याद करें कि हे दयामय, हमारी यही प्रार्थना, स्वच्छ हों फेफड़े बस यही कामना, शक्त दो छोड़े धूम्रपान की लत सभी, गाएं गुणगान हो या घुटन अब कभी, सबकी सांसें सदा स्वच्छ और साफ हों, न निकोटीन का विष हो न संताप हो, लत का आदि हूं मैं किंतु यह ज्ञात हो, मगर न छोड़ू तंबाकू तो शमशान है, हे पिता हे प्रभु मार्गदर्शन करो, बीड़ी सिगरेट से मेरा जीवन दूर करो। तो ये प्रार्थना हर एक को करनी चाहिए जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, और तभी हम स्वस्थ सुखी रह सकेंगे, और तभी हम स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकेंगे। और जितने भी ये व्यसन हैं, जितनी भी आदतें हैं, इन सबको हमको छोड़ना चाहिए। एक मैं स्मार्टफोन के बारे में आपको बताऊंगा। आजकल छोटे कुछ बच्चे हैं, वो स्मार्टफोन का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और स्मार्टफोन से हमारे ये सबसे बड़ी लत है। लगभग इसके प्रयोग करने से डिप्रेशन, एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है, आपकी एकाग्रता भंग होती है। जो आप मेंटल काम करते थे, गणित वगैरह का अगर कैलकुलेट यूज कर रहे हैं, तो वो आपकी वो क्षमता गुणा भाग की भी दैनिक प्रतिदिन कामों में वो खत्म हो जाती है, एकाग्रता भंग हो जाती है। 4 लाख लोग पूरी दुनिया में एक मोबाइल के यूज करने के कारण एक्सीडेंट से उनके एक्सीडेंट हो गए, और लगभग 3000 लोगों की 2019 में मृत्यु हो गई। तो इसलिए, और एक ऐसी लत है जिसमें आप बच्चे हैं ज्यादातर, उनकी पढ़ाई पे असर पड़ता है, उनके एकेडमिक कैरियर पे असर पड़ता है। इसलिए अगर इससे बचना है तो आप एक समय निश्चित कीजिए, पूरे दिन में 1 घंटे से ज्यादा यूज मत करिए। अनिद्रा, जो लोग उसका स्मार्टफोन का सेवन करते हैं, आजकल सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का दुरुपयोग हो रहा है जो मानसिक अशांति पैदा कर रहा है, जो व्यसन के रूप में, वो स्मार्टफोन का यूज, या अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू, इससे ज्यादा प्रचलन आज स्मार्टफोन का है। उससे सबसे ज्यादा हानि हो रही है, क्योंकि हमारी एकाग्रता भंग हो रही, अनिद्रा का लोग शिकार हो रहे हैं, जो काम वो कर सकते थे उनकी काम करने की क्षमता खत्म हो रही है, और एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं। इसलिए आप नियमित कर लें कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं देखेंगे। अगर आप सड़क पार कर रहे हैं, बहुत से हम लोग गाड़ी में जाते हैं, लोग कार
मोबाइल कान में लिए और सड़क क्रॉस कर रहे हैं, रेड लाइट ग्रीन लाइट, कोई ध्यान नहीं है। तो ये एक सड़क दुर्घटना सबसे ज्यादा कारण है मोबाइल यूज करने का, और बच्चों को विशेषकर ध्यान चाहिए। आंखें 7 8 9 साल के आंखों बच्चों के आगे चश्मा लग रहा है। पहले चश्मा हमारे जमाने में 50 60 साल की उम्र में लोगों को लगता था, क्योंकि उनका अत्यधिक सेवन स्मार्टफोन का कर रहे हैं। और स्मार्टफोन से हमें बचना चाहिए। और मैं केवल इतना ही कहूंगा कि अंत में कि दुनिया में भांति भांति के लोग करें अनेक प्रकार के भोग, उन्हें लगे नाना प्रकार के रोग, और योग और साधना भगाए सारे रोग। धन्यवाद। जी थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत जी अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए। एक हमें एक शॉर्ट आंसर हमें दे दीजिए। जी आपने कहा कि बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने, ज्यादा काम करने से स्ट्रेस पैदा होता है और उससे बीमारी बढ़ती है, तनाव हाँ बढ़ता है। इन्फोसिस के चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं कि 70 घंटे काम करना चाहिए सप्ताह में लोगों को। अगर हम रोज काम करें तो 10 घंटे डेली होते हैं, और वीक ऑफ हम लें तो और ज्यादा हो जाएंगे। हाँ हाँ। इस पर क्या प्रतिक्रिया, इससे हमारा स्ट्रेस कम होगा? अ, अब मैं नहीं जानता कि किस संदर्भ में जात आज के जमाने में तो लगभग 8 घंटे 6 घंटे मतलब 48 घंटे करीब वीक में प्रति अभी तक की हम लोग काम कर रहे हैं। और उसमें भी हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग, उनको 1.5 2 घंटा आने में और 1.5 2 घंटा जाने में लग रहा है। अब दिल्ली में बहुत से लोग देखता हूँ, नोएडा में रहते हैं और गुड़गांव में जा रहे हैं, तो 2 घंटे आने जाने, तो उनको तो मतलब 8 4 12 घंटे घर से बाहर रहते हैं। और उनको समय भी नहीं मिलता अपने स्वास्थ्य के ऊपर, ना घूमने का समय मिलता है ना उसका। उसके बाद बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रात को वो उसमें काम करते हैं, नाइट शिफ्ट्स में, उसमें नाइट शिफ्ट कॉल सेंटर्स में काम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर वो 70 घंटे ऑफिस में काम करने का आह्वान कर रहे हैं, तो उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कर्मचारियों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए वहां उस 70 घंटे में उनको जिम की सुविधा भी हो, उनके आमोद प्रमोद का भी साधन हो, और उनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी सुविधा हो। 70 घंटे का मतलब है कि बीच में उनके स्वास्थ्य के प्रति कुछ ऐसी सुविधाएं वहां उपलब्ध होनी चाहिए। तब मैं समझता हूं कि 70 घंटे ठीक रहेंगे। वरना 70 घंटे में और या वो उस स्थान के लिए ठीक है जहां कैंपस में ही लोग रहते हैं, जहां सब लोग जो काम करने वाले हैं उनके लिए एक ही कैंपस है। लेकिन बड़े महानगरों में जहां लोग कम से कम 40 से 50 किलोमीटर एक दूसरे जाते हैं, वहां उसके लिए मेरे ख्याल से ये संभव नहीं है। और अगर 70 घंटे की वो दे रहे हैं तो उनको उन सब सुविधाओं को देना चाहिए, ताकि लोग वहाँ एक क्लिनिक तो हो ही, लेकिन एक योगा टीचर भी हो, एक जिम भी हो, और लोगों के आमोद प्रमोद का साधन भी हो, टेबल टेनिस भी हो। बड़े जी बड़े जी। कॉर्पोरेट में आज सब ये सुविधाएं हैं। बड़ी बड़ी बैंकों में शाम को 4 से 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद वो 1 घंटे के लिए उनको खेलने की सुविधाएं देते जी हैं। तो जी जी, 70 घंटे में ये सब शामिल होना चाहिए बिल्कुल सही, मेरे बिल्कुल हिसाब से। सही। दिव्या जी इस क्षेत्र में बहुत काम कर रही हैं, दिव्या जी जी को बहुत अनुभव है। तो दिव्या जी से पूछते हैं कि जैसा कि डॉक्टर चतुर्वेदी ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि अगर लाइफ में ईज नहीं रहता है तो डिजीज होता है। लेकिन हमारा अनुभव कहता है, हो सकता है ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है, हमने जो समाज में देखा है कि लाइफ में जितने ईज होते हैं और उस ईज का लोग फायदा उठाकर फिर वो अलग गलत गलत आदतें पाल लेते हैं, लाइफ स्टाइल में गड़बड़ी आ जाती है। अगर जीवन में सारे सुख मिल जाए, सारी सुविधाएं मिल जाए, आपका अनुभव क्या कहता है दिव्या जी? थैंक यू सो मच मालवीय जी, एक बार फिर से अपने शो में मुझे बुलाने के लिए। आपने जो बताया है, सर ने, चतुर्वेदी सर ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, और उनके बताने का ढंग, स्पेशली शायरी में जो उन्होंने बहुत ही डिफिकल्ट चीजों को बहुत आसान तरीके से बताया, मैंने थॉरोली एंजॉय किया। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर जो सर ने अपने स्लाइड में डिजीज बोला, डिस ईज,
है ना। यहाँ पर हमारे समझने की जरूरत है। डिज ईज का मतलब है कि हमारे बॉडी में कुछ भी जो ईज नहीं है, जो हम डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डिजीज, इधर दैट इज फिजिकल और मेंटल। ठीक है। आपने जो मालवीय जी मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि जब हम थोड़े से ईज होते हैं तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगते हैं और फिर लाइफ में सब बर्बाद कर देते हैं। पर यहाँ डिजीज का मतलब है, हमें समझना चाहिए कि अगर हम बॉडी में कुछ भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो इमीडिएटली हमें प्रिकॉशनरी जो मेजर है वो मिलना चाहिए। जैसे कि अगर फिजिकली कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, या हमें खुद से एनालाइज करना चाहिए कि क्या हमारी लाइफ स्टाइल, या हिंदी में जिसको जीवन शैली बोलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें तुरंत उसे रेक्टिफाई या करेक्ट करना चाहिए। एट द सेम टाइम दिमाग में अगर सेम थॉट प्रोसेस एंड दैट टू निगेटिव थॉट प्रोसेस आ रही है, उस बारे में हमें सोच सोच करके नींद नहीं आ रही है, कोई हमसे दो बात बोल रहा है, हम रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, रिएक्ट कर रहे हैं, उस पर चिल्ला रहे हैं, घर में अपने फैमिली पर गुस्सा कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं रोड रेज हो रहा है, ऑफिस में जा रहे हैं काम नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज अ मेंटल डिसईज। तो जो भी कंडीशन हो उसमें हमें देखने की जरूरत है कि डिस ईज कहाँ हमें नहीं मिल पा रहा है, और इमीडिएटली हमें उसको करेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आपने डिस ईज के बारे में बताया। तो ये जो डिस ईज है, अ, जिसकी चर्चा डॉक्टर चतुर्वेदी जी ने की और आपने भी अभी बताया, तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो ये मानते हैं कि डिस ईज के को अगर दूर करना हो, उससे जो स्ट्रेस पैदा होता है उसको दूर करना हो, तो एक सुट्टा मार लेते हैं। क्या ये मिथ है? और अगर मिथ है तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है? ये जो एक दो तरह की चीजें मैं इसमें थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगी। जो सुट्टा की बात बोल रहे हैं, स्मोकिंग, फैग या बोलते हैं धूम्रपान जो भी करते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल, जितना स्ट्रेस रिमूव करने के लिए, हाँ ठीक है कि जैसे हम फैग लेते हैं या स्मोक को अंदर करते हैं, जो निकोटिन होती है हमारे बॉडी में एक रिलैक्सेशन की फीलिंग देती है फॉर टाइम बिंग। ठीक है। जब हम इसे एक हैबिट में इंक्लूड कर लेते हैं और हमें ऐसा फील होने लगता है कि अगर एनी टाइम मेरा दिमाग मुझे सिग्नल दे रहा है कि आई एम एट डिस्कम्फर्ट, और अगर हम एक फैग लेते हैं या स्मोक करते हैं तो धीरे धीरे वो हमारी हैबिट बनती है, और ये हैबिट एंड ऑफ द डे एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपने जो बताया कि ये बात सही है कि हमें रिलैक्सेशन फील होता है, पर वो टाइम बिंग की होती है, पर इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। तो हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। हमारे सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि स्मोकिंग अभी तुरंत शुरू हुई है, और स्मोकिंग को गवर्नमेंट भी कंट्रोल, हालांकि वो वार्निंग सिग्नल के साथ स्मोक के पैकेट पर, आप सिगरेट के पैकेट पे देखिएगा कि उस पे आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी रहता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, साथ में रहता है कि ये कैसे आपको मार सकता है। ये लोगों पे छोड़ चुकी है, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को कंट्री भी चलानी है, उनको रेवेन्यू भी चाहिए, उनको टैक्सेस भी चाहिए, इसीलिए दे आर नॉट एबल टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ सिगरेट्स। बट ये हमें समझनी है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। पर सोसाइटी में स्ट्रेस, जैसे लोग भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं, पर बच्चे नहीं भागते हैं, बट वो भी स्मोकिंग करना शुरू कर चुके हैं। यहाँ तक कि 11 12 13 साल के बच्चे भी आजकल स्मोक करते हैं। स्मोक सिर्फ निकोटिन सिगरेट नहीं करते हैं, वीड्स करते हैं, अदर सिंथेटिक ड्रग्स भी करते हैं। तो क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी समझना है। एक तो मैचो बोलते हैं कि अगर पीयर प्रेशर होता है, बोलते हैं अरे तुम मम्मी के बेटे हो क्या, अभी तक सिगरेट पी लिया। बच्चे बोलते हैं अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, वो सिगरेट पीना शुरू करते हैं। लेकिन एक सेकेंड कॉन्सेप्ट आ गया है, लेडीज या गर्ल्स भी आजकल स्मोक करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मुझे एट पार होना है बॉयज के, अगर मुझे दिखाना है कि नहीं भाई मैं तुम्हारे जैसी हूं, आई कैन डू विदाउट बॉदरिंग और विदाउट माइंडिंग, वो अपने को दिखाने के लिए कि आई एम इंडिपेंडेंट, दे ऑल्सो स्मोक। तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, यहाँ पर एक एस्पेक्ट है रिलैक्स तो माइंड फील करता है, सेकेंड है सोसाइटल प्रेशर एंड खुद को पोर्ट्रे करना
कि भाई अगर मैं कहीं जा करके बोलती हूँ कि आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, तो चार लोग बात करने लगेंगे, स्पेशली यंग कैटेगरी में, कि ये कैसा है, एकदम इसको पता ही नहीं है, ही और शी डजंट नो हाउ टू एंजॉय लाइफ। ये एक बहुत बड़ा पहलू है जिसको समझने की है। अब ये है कि अब तो शुरू कर दिया, जो भी सोसाइटल प्रेशर हो या जो भी हमें चाहिए हमने अब शुरू कर दिया, पर इसको छोड़े कैसे? इससे अब एडिक्शन से, चूंकि सर ने बताया अपने प्रेजेंटेशन में, आई विल नॉट रिपीट कि इसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं, आप अपनी लाइफ को कितना कम कर देते। तो अब इसको, प्रॉब्लम की तो बात हो गई, इसको दूर कैसे करें। देखिए, जब भी कोई जैसे बोला ना कि ये मिथ है, तो ये तीन चीज होती है एडिक्शन से पहले। एक होता है क्यू, एक होती है हैबिट, एक होता है रिवार्ड। तीन स्टेप में चलती है। क्यू का मतलब है कि कहाँ से ये शुरू होता है स्मोकिंग करने की, हमें समझने की जरूरत है थोड़ी साइंटिफिक वे में, कि क्यों क्या होता है। कि कोई एक सिचुएशन होती है, परिस्थिति होती है, लोकेशन है, कोई टाइम है, कोई इमोशनल फीलिंग है, या जिस सराउंडिंग में हम हैं, इन्वायरमेंट है, या हमारा लास्ट एक्शन है, ऐसा कुछ एक क्यू होता है जो कि हमें बोलता है कि दिस इज टाइम फॉर स्मोक। लाइक कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में गया, मैं पूरे दिन सिगरेट नहीं पी रहा हूँ, लेकिन जैसे फ्रेंड सर्कल में गया, मुझे लगता है कि ये दोस्तों के साथ हूं, अब मुझे एक फैग ले ही लेना चाहिए, या मुझे काम करते करते मेरे बॉस ने मेरे ऊपर चिल्ला दिया, तो मुझे लगा, मुझे मेंटल स्ट्रेस हो गया, मैं किससे बोलूं, मैंने फिर एक सिगरेट ले लिया, और मुझे लगा कि मैं रिलैक्स हो गया। तो मुझे एक क्यू मिलता है, ठीक है, कि या किसी पर्टिकुलर टाइम या लोकेशन में सुबह वॉशरूम जा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू पास माई स्टूल विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि देयर माइट बी सम अदर रीजन, कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, मैंने खाना अच्छे से नहीं खाया, बट आई फील कि अगर मैं एक सिगरेट ले लेता हूं तो मेरा मोशन ठीक से पास हो जाता है, या सोते समय मैं स्ट्रेस में हूं, मैंने एक सिगरेट पी लिया। तो दीज आर द क्यूज दैट प्रोवोक यू टू टेक दैट सिगरेट, ठीक है। अब ये जब क्यू को हम कंटिन्यूएशन में करते रहते हैं, सेम थिंग को रिपीट करते, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। और एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जब हम वो क्यू को फॉलो करते हैं, तो हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है, हमें मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है ना। तो अभी हमें समझना है कि अगर मुझे सिगरेट छोड़ना है, इस एडिक्शन को, तो मुझे कहाँ काम करना है। सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरा क्यू क्या है, मैं इस सिगरेट को कब कब पीता हूँ, दोस्तों के साथ पीता हूँ, स्ट्रेस में पीता हूँ, कभी पीता हूँ, फिर उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलता है। क्या ये 2 मिनट के लिए मिलता है, 10 मिनट्स के लिए मिलता है, 10 घंटे के लिए मिलता है। कुछ लोग ऐसे करते करते चेन स्मोकर हो जाते हैं, उनकी एक सिगरेट बुझती नहीं है कि दूसरी उसी से जला लेते हैं, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। पर वो हमें समझना है। अब जो रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, यही पर हमें चेंज करने की जरूरत है, पहले खुद को समझने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद जो हमें रिवॉर्ड मिलता है, मेंटल रिलैक्सेशन, वी कैन ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड आउट करेंगे कि इस समय मैं दूसरी कौन सी एक्टिविटी करता हूं कि मुझे ब्रेक मिल जाता है, सेम रिवॉर्ड मिलता है मेंटल रिलैक्सेशन का। लेट्स सपोज मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ होता हूं एंड आई फील गुड बाय शेयरिंग वन सिगरेट। जनरली जो यंग जनरेशन होती है, दे शेयर वन सिगरेट, फोर चार पांच है, एक एक कश लिया और एकदम एंजॉय कर लिया। तो कैन वी डू समथिंग एल्स टू गेट द सेम काइंड ऑफ हैप्पीनेस एंड फीलिंग रिलैक्सेशन? We can crack joke, we can go back to our younger days and we can टॉक अबाउट दैट, किसी और चीज पे बात करेंगे। या तो अगर हमारे जब बॉस डांटते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, तब मैं एक सिगरेट लेता हूँ, उस समय आकर के मैं अगर बैक काउंटिंग करता हूँ या सोचता हूँ कि ये सिर्फ एक मोमेंटरी थिंग होती है, 1 मिनट और 2 मिनट्स का, उसमें अगर मैं ये फाइंड आउट करूंगी कि किस कारण से मुझे अभी कैसे मेंटल रिलैक्स होना है, तो अगर मैं डिफरेंट ऑप्शंस पे काम करना शुरू करूंगा और तब मुझे अगर सेम रिवॉर्ड मिलेगा, तो धीरे धीरे देयर आर अदर मेथड्स आल्सो, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, कि सेम निकोटिन के टैबलेट्स होते हैं, निकोटेक्स, वो सबसे नहीं होता है। सबसे पहले आपका विल पावर स्ट्रांग होना है, आपको समझना है कि इसके साइड इफेक्ट क्या है और मेरा क्यों क्या है, उससे मुझे क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, कैसे मैं इस रिवॉर्ड सिस्टम को, ऑल्टरनेट रिवॉर्ड को ला सकता हूं, तभी आप इसको छोड़ सकते हैं। तो ये तो है, इट्स अ वेरी लॉन्ग सेशन किशोर जी, किसी दिन मैं कंप्लीट आपको बताऊंगी जी जी लोगों को कैसे छोड़ना चाहिए। बट नट शेल में आप इतना समझिए कि अपने रिवॉर्ड सिस्टम को चेंज करके हम अपने क्यू को समझ के हम इस
इस एडिक्शन को दूर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही है आपने दिव्या जी, और अभी हम और भी इस पे बात करेंगे, आज ही बात करेंगे, क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। अब हम न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मिस संध्या रानी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना प्रेजेंटेशन दें। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं न्यूट्रिशनिस्ट, सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट संध्या फ्रॉम ACHE, एशियन कोलिशन ऑफ हेल्थ एम्पावरमेंट से हूँ। मैं जस्ट प्रेजेंट कर रही हूँ अपनी स्लाइड। मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, ओके। पर प्रेजेंटेशन कुछ नहीं आ रहा है। अभी नहीं, अच्छा। अभी आया? नहीं जी। अच्छा, एक मिनट। सर, अगर मुझे थोड़ी सी इजाजत हो तो मैं, सॉरी इंटरफेयर कर रही हूँ बीच में, मुझे 10 बजे निकलना होगा सर। तो जब तक संध्या जी अपना प्रेजेंटेशन को सेट कर रहे हैं, क्या संभावना है दैट whatever you want to ask, you could ask and I could exit from this? हाँ, बल्कि हम आपका इंतजार ही कर रहे थे, डॉक्टर गगनदीप कौर। सर, मैं शुरू से यहाँ हूँ, काफी देर से हूँ। ओ तो अच्छा अच्छा। तो मुझे दरअसल सबसे पहले आपसे ये जानना है कि जो लाइफ स्टाइल चॉइस की बात होती है, मेंटली फिट रहने के लिए या मेंटल हेल्थ का, इससे इसका क्या को रिलेशन है? सर, इससे पहले मैं आपने जो दो बहुत मस्त सवाल पूछे उनका जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले, इन्फोसिस के मालिक जब कहते हैं कि 70 घंटे काम करना चाहिए, जी तो जी। समस्या काम करने की नहीं है या घंटों की नहीं है। समस्या ये है कि आपका मन उसमें है कि नहीं। सी, इफ यू लव योर वर्क, दैट इज एक्चुअली योर हॉबी फॉर यू, तो वो 70 घंटे आपका शौक हो जाता है। जीवन में काम आपको अर्थ देता है। सो इफ एनीथिंग दैट यू डू गिव्स यू मीनिंग इन लाइफ, तो वो आपके लिए मेडिटेशन के बराबर ही है, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर अनिल जी कर रहे थे, काफी सीनियर है वो, एंड दिव्या जी ऑल्सो स्पोक अबाउट इट। सो बेसिकली बात घंटों की नहीं है, बात एटीट्यूड की है। अगर उसी वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स है, तो वहां अगर आप 2 घंटे भी हफ्ते में काम कर रहे हैं, आप सड़ मर जाएंगे, आपको कोई ना कोई इशू हो जाएगा। अगर वहां आप 70 घंटे काम करें, बट यू लव दैट वर्क, इट गिव्स मीनिंग, यू हैव अ हैप्पी इन्वायरमेंट, इट मेक्स लाइफ ब्यूटिफुल। जहां पर डिस ईज की बात हो रही है, जो आपने दिव्या जी से पूछा, देखिए, अगर आप वेद पुराण की बात करें तो शिव अक्सर कहते हैं कि अपनी बॉडी को कंफर्ट जोन से निकालो। ज्यादा आराम बीमारी का गढ़ होता है, बुद्धि में भी समस्या को पैदा करता है। तो आई थिंक आपका, किशोर जी, सवाल वाज विद रिस्पेक्ट टू द एटीट्यूड अगेन, जो हम आलस्य में आ जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको डिसीज में, मतलब डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, मगर डिस्कम्फर्ट को फेस करना जरूरी है। दिल धड़कने के लिए बना है। जब आप भागेंगे, दौड़ेंगे, कार्डियक करेंगे, तो आपकी सांस फूलेगी फूलेगी। नोएडा से गुड़गांव जाना अच्छी चीज है, क्योंकि मजबूरी में कम से कम मेट्रो ट्रैवल करते हैं, आप 2-4 कदम चलते हैं। तो आई थिंक लाइफस्टाइल को आपको समझना होगा। और हम बहुत ही, ऋग्वेद में बहुत बढ़िया चीजें दी हैं, लेकिन डॉक्टर अनिल जी, आप एग्री करेंगे, समय के साथ साथ हर वेद को बदला गया। वेदों के बाद उपनिषद लाए गए। उसके पीछे लाने का शिव का जो मंतव्य था वो यही था, विद चेंजिंग लाइफस्टाइल्स यू हैव टू चेंज द वे यू वर्क एट इट, जबकि उसका मूड वही रहना चाहिए, isn't it? तो सिमिलरली स्मार्टफोन्स खराब नहीं है। आप और मैं स्मार्टफोन की वजह से यहाँ जुड़े हैं भाई, संभव नहीं है। तो लेट्स नॉट पिक अप एनी ऑफ द एक्सट्रीम्स, बट लेट्स लुक एट हाउ वी मेक यूज ऑफ इट। स्मार्टफोन पे आप अपनी पल्स भी मैनेज कर सकते हैं, स्मार्टफोन पे आप रिमाइंडर्स भी लगा सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है
कि कोई भी चीज अपने आप में सही या खराब नहीं होती है, आप उसका नजरिया और उसको यूज कैसे करते हैं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। सर आपने जो मुझसे सवाल पूछा, एक बार रिपीट करेंगे सर, आपने जो कि मेंटली फिट रहने के लिए लाइफ स्टाइल को हम किस तरह से मतलब कोरिलेशन क्या है दोनों? देखिए, एक अच्छा बुद्धि और माइंड कनेक्टेड है। इफ यू आर हैप्पी, if you are positive, if you stop complaining, if you are more willing to seek every challenge as an opportunity to learn, तो आपका शरीर भी बढ़िया काम करेगा। हमारा दिमाग, वो जो ऑल इज वेल वाली कहानी है ना, वो तभी काम करती है बिकॉज दैट्स व्हाट आवर ब्रेन बिलीव्स। अगर इनफैक्ट हमारा दिमाग हमारे फिजिकल कंडीशंस को डिफाई कर सकता है, इतनी सॉलिड ताकत है। बहुत सिंपल सा उदाहरण है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जहां पर फ्रॉस्ट ब्राइट हो रहा था, जहां पर मेडिकल डॉक्टर्स का ये मानना था आपके पास ना खाना था ना नींद थी, आपका हाइजीन वाज यूजलेस, आपका स्ट्रेस लेवल्स वाज बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, लेकिन वही लोग जो बुद्धि से बहुत मजबूत थे, जो ये मानते थे कि मैं यहाँ से जीने जिंदा वापस निकलूंगा, एंड देयर इज अ पर्पस ऑफ माय एग्जिस्टेंस और देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू डू, उनको कुछ नहीं हुआ। ना बीपी हुआ, ना हार्ट अटैक हुआ, ना ही उनको फ्रॉस्ट ब्राइट जैसी चीज जिसको मेडिकली लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो भी नहीं हुआ। तो मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप खराब तरीके से जिए, पर मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये जो 2 ग्राम है ना यहाँ पर, ये बहुत कुछ डिटर्मिन करता है। सो इफ यू कुड टेक वेरी गुड केयर ऑफ व्हाट यू फीड योरसेल्फ, यानी आप किस तरह के नेगेटिव विचार खुद से बात करते हैं, आप किस एटीट्यूड से जीते हैं, आप क्या अप्रोच लेकर चलते हैं जिंदगी की तरफ, और अगर हर कष्ट को, हर मुश्किल वक्त को अगर आप लर्निंग लेसन मानकर आगे बढ़ते हैं, तो आई थिंक लाइफ है, लाइफ तो ऊंची नीचे चलेगी चलेगी, तो जीने में मजा आएगा आपको, वरना बहुत कंफर्ट बर्बाद कर देगा, मेरा ऐसा मानना है। मिस्टर शंकर, डॉक्टर गगनदीप हैज टू लीव, तो योर क्वेश्चन। Yeah. Good morning, Dr. Kaur. How are you? Good morning, sir. All well. How are you? Good to see all of you here. Great, great. My question to you is, of course, you said about work, but I'll ask you about entertainment. Nowadays, these youngsters, especially, they go to any levels for getting themselves entertained. I was quite disturbed to read a report recently of this guy, this big boss person who used snake venom to get entertainment in another rave parties. Now, there seems to be no limit to this. So, what's your opinion on all this? आई थिंक जो दिव्या जी बात कर रहे थे, देखो बहुत आसान है ये कहना कि वो एक पफ ना लगाकर एक जोक क्रैक कर लो, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी। वो एक पफ, वो जो एक ग्लास, ऑलमोस्ट एज अ मेटाफर आई एम यूजिंग, डोपामिन रिलीज करता है ना आपके ब्रेन में, वो जो वेनम, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एडिक्शन ओनली सर, इट प्रोड्यूसेस एन ऑसम डिग्री ऑफ डोपामिन इन योर बॉडी। सो डोपामिन्स आर प्लेजर रिलीजिंग हार्मोन्स, एंड हमारा, माफ कीजिएगा बहुत अदब से बात कर रही हूँ, हमारी जनरेशन थोड़ी आलसी जनरेशन है, शॉर्टकट वाली जनरेशन है। द मिलेनियम्स आर डैम इंटेलिजेंट पीपल बट लुक फॉर शॉर्टकट्स। तो अब वो एक डस, वो एक वेनम, वो एक पफ, जितना डोपामिन मुझे इमीडिएट देता है ना, उतना करने के लिए मुझे आधे से पौने घंटे एक्सरसाइज करनी होगी, कम से कम 20-25 जोक्स मारने होंगे, आधे से पौना घंटा मुझे हंसना होगा। और जिस माइंडसेट से हम चलते हैं, हम सोचते हैं कौन इतना टाइम लगा यार, एक गश मारो, इट गिव्स यू दैट फील, मूव ऑन। सो आई थिंक इट गोज लाइक दैट। तो समय, मतलब माफ कीजिएगा सर, मैं आपकी एज का यहाँ इस्तेमाल करने वाली हूँ शंकर जी आपकी एज में और मेरी एज में, मैं भी बुढ़ी हो रही हूँ, 50 के आसपास होने वाली हूँ। हमारी एज में पेशेंस, टॉलरेंस वुड कम वेरी नेचुरली। It was a free gift that we had. And therefore, for us, exercising, going for a walk, chit-chatting, or doing something meaningful as ways of gaining dopamine or feeling happy was very natural. But this generation is a 2-minute Maggie noodle Zomato generation. They don't wait for anything. So more than making those changes, you'll have to work on the tolerance and the patient's capacities if you really want that change to happen. That's how I see it. You were speaking about my generation and your generation, but our generation grew at a time when there was no television, there was no smartphones, no social media. So we had a lot of time for interaction. But present generation, they're glued to smartphones, and I would say they're more glued to themselves. And so what happens is they seek happiness elsewhere. So considering the present circumstances under which they live, for example,
where they're addicted to a lot of things, as what Dr. Chaturvedi said. What's the way out? I think the fact this generation had smartphones, the fact this generation has technology, it is way more better to connect with people. See, if today you and I are connecting, if Dr. Chaturvedi, we are all sitting in different parts of the world. And right at 10, I have another session where with somebody from Canada has to speak to me, would not have been possible without technology. The problem is not this. If we talk of the earlier times when I used to come on television, it would take the entire day. मतलब सुबह गए शाम हो गए, उस दिन आप उस एक टीवी शो के बिना कुछ नहीं कर रहे हो. Right now I've just given this 1 hour to you, the next hour I have somebody else. It is more productive. So it's not the problem there. The problem is that the mobile and other technologies were made to connect with others. We are not using it for that. We are not even using it to connect to our own selves. मैं जिस वेद पुराण की बात कर रही हूँ, देखो मेरे पास ग्रंथ नहीं है पढ़ने के लिए, इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, मगर ये सारी पीडीएफ, ये सारी जानकारी ऑनलाइन ही मेरे पास है ना. तो समस्या वो नहीं है सर. समस्या ये है कि आज हम लोगों से कनेक्ट ही नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज इट कॉल्स फॉर एफर्ट. फिर 4 बात आपसे करूंगी, 2 आप भी तो सुनाओगे. डॉक्टर कौर नहीं है? यस सर. डॉक्टर कौर, शंकर सर भी इस समय यूएस में बैठे हैं और हमसे बात कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो आपसे मैं यही तो कहना चाह रही हूँ, प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है भाई. Dr. Kaur, I'm not mentioning about your generation or my generation. I'm speaking to someone who is in his 20s or probably under 30. I'm talking. His thought, his process is entirely different. His process is not to connect with another generation or with his own people. But then he's also, as what Dr. Chaturvedi said, they're all very addicted to phones. For example, India has been spending 1/3 of the Indian youngsters have been spending more than 1/3 of their life on phones. So what do you have to say about that? It's not connection at all. It's about Exactly. That's exactly what I'm trying to say. They're not connecting because there is a good amount of escape. This current generation has major inferiority issues. मैंने वही तो बोला, 2 बात आपसे करूंगी तो 2 आप सुनाओगे भी, तो सुनने की कैपेसिटी नहीं. कौन मत्था मारे किसी के साथ. अच्छा यार, इंस्टाग्राम रील देखते चलो. You watch all kind of Netflix series because it is so damn addictive. There are such challenging gaming that happens online. So you believe I don't have to interact with anyone. I can be happy on my own, because whenever you are inviting somebody in, you're also exposing yourself to more vulnerabilities, which I don't want to. That's the problem of the current generation. The escape is awesome. मतलब भागते रहते हैं हर चीज से, हर कॉन्फ्लिक्ट से इनको भागना है. तो सर बात करूंगी तो झगड़ा होगा ना भाई, आपकी मेरे विचार हमेशा तो नहीं मिलेंगे. तो कौन मत्था मारे यार, चल छोड़ना, नेटफ्लिक्स ऑन कर लो, गेमिंग कर लो, डू व्हाटएवर. एंड देयर अगेन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट मेकिंग मनी. देयर आर सो मेनी पीपल, आई एम टॉकिंग द करंट जनरेशन, हु सेज द यूट्यूबर्स, द इन्फ्लुएंसर्स, where they say, or even the Instagram people, if you have 1 million followers, you can charge like 5 lakhs. So these shortcuts are what are making them withdraw within, not connecting to the outside world, and other reasons of immense amount of anxiety, depression, because technically they deny their own emotions. And that is why you will see the DPs to be awesome. And when they're in the most shittiest part of their life, their real life or the real life will look so damn perfect. And haven't we heard of these young people committing suicide who were just one night before were putting up an amazing dancing video up in a party as if they are the blessed people living in heaven? Because we are disconnecting. This entire social media is making us disconnect with our own selves. जब खुद से संबंध नहीं होगा तो दूसरे से क्या खाक जोड़ोगे यार? This is how I see it, sir. Thank you, Dr. Kaur. I think I'll come back to you if, of course, if time permits. And Ms. Sandhya, are you ready with your PowerPoint presentation? I think, sir, there is some glitch from my side. If admin can play it, so it would be very helpful for me. Sumit? Yeah. Now it is visible. Okay. So sorry for previous thing. There was some glitch. But as per today's topic, that understanding the impact of lifestyle choices on health. I think the problem is that कि हमें ना चीजें आसानी से मिलने लग गई हैं आजकल. So जो भी चीजें आसानी से मिलती हैं हम उसका ओवर शोषण करते हैं, मतलब हम उसको ज्यादा यूटिलाइज करते हैं. तो ज्यादा यूटिलाइजेशन हमें ये नहीं पता लगता है हम अच्छी चीजों का कर रहे हैं या गलत चीजों का कर रहे हैं. जो गलत चीजों का हम यूटिलाइजेशन करते हैं वो हमें ईजी लगती हैं और वो ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं. मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी पे नहीं जाता, क्योंकि आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी करना इट्स जस्ट लाइक दे थिंक कि टाइम वेस्ट है. आधा घंटा नेटफ्लिक्स या इस तरीके से जैसे मैम ने बोला वो ज्यादा इजी लगता है.
कि थकान नहीं हो रही है, आराम से कर रहे हैं, आराम से पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, कर रहे हैं। तो ये जो गलत चीजों का रिपीटेशन है वो ही आगे जाके एडिक्शन कॉज करता है, और एडिक्शन ही आज की यूथ को बहुत खराब कर रहा है। तो जैसे एडिक्शन में आपके जो सब्सटेंस अब्यूजेस है, जैसे हम बात करें, अल्कोहल, टबैको, ड्रग्स, स्मार्टफोन, ये सारे के सारे आते हैं, क्योंकि इनको लेने के बाद ना तो हमें किसी से कुछ बात करनी होती है, हमें अपने ही में हमें एक संतुष्टि मिल जाती है। सो हम अपने आप में ही खुश रहते हैं। बट एडिक्शन, ये नहीं सोचते हैं लोग कि जो भी हम चीज ले रहे हैं उसका हमारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, हमारी बॉडी खराब हो रही है, हमारी जो लाइफ स्पैन है वो रिड्यूस होता जा रहा है, तो जो उम्र की जो लाइन है वो कम होती जा रही है, और बीमारियां बहुत जल्दी पड़ रही हैं कि हॉस्पिटल ज्यादा जाना पड़ रहा है। अपने कहीं जैसे अगर आप लोगों ने इकिगाई पढ़ी होगी, सो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही खत्म करी है इकिगाई। दुनिया में ऐसी जगह भी हैं जहां पर अच्छी लाइफस्टाइल लेकर लोग 100 साल से ऊपर तक जिंदा हैं, और अभी भी इतना अच्छा फिजिकल एक्टिविटी है उनका कि अभी हमारे से भी वो एक कंपटीशन कर सकते हैं। सो जो बेटर लाइफस्टाइल है वो फॉलो करके आप अपनी बॉडी को अच्छा बेहतर बना सकते हैं। आपकी जो डेली रूटीन की छोटी छोटी चीजें हैं उसको मॉडिफाई करके आप अपनी जो लाइफ स्पैन है उसको बेटर, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेटर कर सकते हैं। सो जैसे मैं आई एम फ्रॉम एशियन कोलिशन ऑफ हेल्थ एम्पावरमेंट, जो कि इंडियन मेडिकल एकेडमी ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ के अंडर काम कर रहा है, और जो डी एडिक्शन पे बात करते हैं, और ये वर्क कर रहा है SDG 3, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 पर। जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो है जो 2015 में सारी UN कंट्रीज ने एक एजेंडा दिया था, जिसमें हेल्थी लाइफ एंड वेलबींग को एक मोटिव माना गया था, जिसमें ऑल दो 17 गोल्स और 169 टारगेट्स हैं, जिसमें से थर्ड नंबर का जो एम है वो हेल्थी लाइफ एंड वेलबींग का है। क्योंकि जनरेशन ये भूल गई है, जो इजी मिल रहा है उसी में चले जा रहे हैं, कोई बेटरमेंट का उनको दिमाग में ख्याल ही नहीं आ रहा है। सो ये गवर्नमेंट की तरफ से, पूरे विश्व की तरफ से एक एजेंडा चलाया हुआ है, जिससे अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटरमेंट की तरफ और अच्छी चीजों की तरफ लिया जाए। स्लाइड चेंज प्लीज। सो एडिक्शन क्यों हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है? क्योंकि ये बॉडी के हर ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि चाहे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, टबैको च्यूइंग है, या फिर स्मार्टफोन का यूजेज है, बॉडी के हर एक मतलब बॉडी के हर एक ऑर्गन को इफेक्ट करता है। जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आर्टरी डैमेज होने के है, जिससे हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। आपका जो स्मोकिंग वगैरह से कोलेजन फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाता है, जिससे एजिंग फास्ट होती है, रिंकल्स वगैरह स्किन पे पड़ने लगते हैं, एज ज्यादा लगने लगती है। मतलब 20 साल का इंसान आपको 30-40 का लगने लगता है। लंग कैंसर्स हो रहे हैं, फैट डिपोजिशन बढ़ रहा है, जिससे ओबेसिटी इंक्रीज हो रही है, और ओबेसिटी इंक्रीज होने की वजह से यू ऑलरेडी नो कि ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, ये ओबेसिटी की वजह से होती हैं। रिड्यूस एस्ट्रोजन लेवल, जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है फीमेल्स में, जिसमें क्या कहते हैं बहुत सारे फीमेल प्रॉब्लम्स आती हैं। डेंटल प्रॉब्लम होगी, जैसे दांत पीले हो रहे हैं, या बेड ब्रेथ हो रही है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होती है। आई प्रॉब्लम, जैसे 10-10 घंटे, 7-7 घंटे लोग अगर मोबाइल देख रहे हैं, एक तो ड्राई आइज का प्रॉब्लम हो रहा है, नींद खत्म हो रही है। नींद हमारा इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का नींद, कि बॉडी रिजनरेट होती है, उसमें रिजुविनेट होती है। बट आजकल लोग उस चीज को टाइम ही नहीं दे रहे हैं। आधी बीमारियां तो आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, नींद, ये तीनों चीजें अगर आपकी ठीक रहेंगी तो बीमारियां अपने आप ही खत्म हो सकती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह। सो एडिक्शन लोग क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? क्योंकि या तो वो इस डिनायल में है कि उनको पता ही नहीं है कि एडिक्शन है, हम इस चीज का एडिक्शन कर रहे हैं, या फिर वो इस मिथ में है कि ये जो मैं कर रहा हूँ इससे मेरे को फायदा पहुंच रहा है साइकोलॉजिकली या मेरी बॉडी पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दीज आर द मिथ्स, जिसमें स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स या स्मार्टफोन, जो लत है, वो लोग सोचते हैं कि कल छोड़ देंगे, परसों छोड़ देंगे, बट कल या परसों कभी आता नहीं है। एक विशियस साइकिल में वो कैद होके रह जाते हैं। एंड ओकेजनल सिगरेट, लाइट सिगरेट, माइल्ड सिगरेट वुड बी सेफर, कि मैं कम ले लूं या कभी कभार ले लूं या लाइट सिगरेट ले लूं तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बॉडी को इतना हार्म नहीं होगा, मैं बाकी इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, पानी ज्यादा पी लूंगा या ऐसे करके कर लूंगा। बट
एक जो आपकी क्रोनिक लत है, मतलब जो बहुत पुरानी लत चली आ रही है, वो बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। और एक्यूट आपने दिन भर में ही बहुत ज्यादा ज्यादा ले लिया, वो भी आपकी एक्यूट प्रॉब्लम करेगी। चाहे आपको की बहुत पुरानी आदत है, चाहे आपको एकदम लत लगी है, बॉडी को वो इफेक्ट कर ही रही है। आप एक सिगरेट लेंगे, आप एक फ्रूट खा लेंगे, तो ये नहीं सोच सकते हैं कि उससे सारा इफेक्ट खत्म हो गया। जैसे लोग कहते हैं मैं ग्रीन टी भी ले लेता हूँ, मैं पानी अच्छे से पीता हूँ अगर मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, बट वो उसका इफेक्ट रिड्यूस नहीं कर पाता है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, सोशल नेटवर्क हेल्प्स टू रिलीव इन स्ट्रेस। ये जैसे मैम ने बोला कि ये ना आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं। आप अपने माइंड को खुद ट्रेन कर सकते हो कि स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स अगर आप ले रहे हो स्ट्रेस के टाइम पे, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा है। बट अगर उसी की जगह आप थोड़ी देर वॉक पे निकल जाओ, या फिर आप कोई पेट है उसके साथ खेल लो, या अपनी फ्रेंड्स या किसी लव्ड वन को यू कैन कॉल एंड टॉक फॉर 20-30 मिनट्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है। आपका टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और आप उस चीज के बारे में भूल जाएंगे, स्ट्रेस बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो थोड़ी सी चीजों को बदलिए। सो इट इज, आप पीछे थोड़ा रहिए, बैक बैक। इट इज टू लेट टू क्विट, डैमेज इज ऑलरेडी डन। मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि मैम 50 की उम्र तो निकल गई है, कोई बात नहीं, अल्कोहल पीने दीजिए, थोड़ा घी भी खाने दीजिए, जो फ्राइड फूड है, बची कितनी लाइफ है, अच्छे से जीने दीजिए। अच्छे से जीना इज नॉट लाइक कि ये चीजें करना। आप अगर हॉस्पिटल आए इट मीन्स आपको कोई बीमारी है, तो आप हेल्थी तो आए नहीं है, तो अच्छे से आप नहीं जी रहे हैं। तो बाकी बचे हुए जो बॉडी ऑर्गन्स है उसको थोड़ा सा मेंटेन करिए, उनको बचाइए, और फिर तब अपनी लाइफ अच्छे से जिए कि आपको हॉस्पिटल आने की जरूरत ना पड़े। इट हेल्प्स इन वेट लॉस, इट सप्रेस द हंगर। ऑब्वियसली इट सप्रेस द हंगर, क्योंकि आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि खाना ना खा के इतनी कैलोरीज मिलेंगी मुझे, सो मैं ना स्मोकिंग कर लेती हूँ, तो उससे मेरा वेट लॉस भी हो जाएगा। ऑब्वियसली आपका डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आपका आधा किलो तो यही कम हो जाएगा, जो अगर आप वेइंग मशीन पे चढ़ेंगे, आपने उस टाइम की कैलोरी नहीं ली है, तो आपके वेट लॉस हो ही जाएगा। बट वेट लॉस के साथ आपका मसल लॉस हो रहा है, आपका इम्यूनिटी खराब हो रही है, आपका लाइफ स्पैन कम हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लूज कर रहे हैं। इट नेसेसरी फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ सोशल गैदरिंग। आप खुद ही सोचिए, अगर एक गैदरिंग में जाने के लिए आपको अपनी बॉडी को हार्म करना पड़ रहा है, तो यू हैव टू रीथिंक, क्या वो गैदरिंग इतनी वर्दी है कि आप उस गैदरिंग में जाना चाहते हो। नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। सो देर आर दी सम प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर आप आसपास देखेंगे जैसे नशा मुक्ति केंद्र वगैरह, ये सारी चीजें हैं। जैसे स्मोकिंग सिजेशन प्रोग्राम हो गया, जिसमें काउंसलिंग की जाती है, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाती है, मेडिकेशन होता है, बहुत सारी अलग अलग थेरेपीज होती हैं जिसके थ्रू नशा छुड़ाया जाता है। या फिर ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स भी हैं आजकल, सो उनके थ्रू भी हेल्प ली जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे कुछ स्टडीज भी हैं जो बाहर विदेश के लोग अपना रहे हैं निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू। सो ये इनके पीछे कुछ स्टडीज हैं, ये ऐसे ही मिथ नहीं है। सो वो फॉलो करके कुछ, जैसे स्वीडन में 5% कम हुआ है, या फिर 25% यूके में कम हुआ है, तो वो अपने लोगों को हेल्प कर रहे हैं स्मोकिंग कम करने में, दूसरी चीजों पे डाइवर्ट करके या उनकी आदतें चेंज करके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So all these are the reference links. Next slide please. So यहाँ बात रही, या तो आप क्विट करिए या ऑल्टरनेटिव कुछ ढूंढिए, या फिर आप मतलब वो आपके लिए बेटर है। और साथ के साथ आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, क्योंकि स्मोकिंग, अल्कोहल, टबैको, ये सारी चीजें बॉडी में इतना टॉक्सिन क्रिएट कर रही हैं कि आपकी एज से पहले ही, आजकल 30 के एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। सो ये कोई एज नहीं है। हाँ, सो अपने मतलब छोटी छोटी चीजों में चेंजेस करिए। जैसे आप अपनी फूड प्लेट को ही देखिए कि उसमें क्या है। मैं सिर्फ रोटी सब्जी खा रही हूँ या खा रहा हूँ, या फिर मैं सिर्फ दाल रोटी खा रहा हूँ या दाल चावल खा रहा हूँ। आपकी जो प्लेट है वो डिवाइडेड एटलीस्ट इसमें होनी चाहिए कि 50% आपका फ्रूट और वेजिटेबल, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होना चाहिए, एंड रेस्ट ऑफ द 50% वुड बी कमिंग फ्रॉम ग्रेन्स, प्रोटीन। सो इस तरीके से आपकी जो प्लेट है वो डिवाइड होनी चाहिए। आप खुद देखिए आपकी प्लेट में क्या क्या है और क्या मिसिंग है, उसको इंक्लूड करिए। डेयरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अगर बात करें कि डेली लाइफ में क्या खाना चाहिए, कि एक प्लेट में तो मैंने ये खा लिया, अब डेली में मेरे को कितना फ्रूट लेना चाहिए, कितनी मेरे को वेजिटेबल लेनी चाहिए, या मैं ऑयल कितना महीने भर में या एक दिन में यूज कर सकते हो। तो ब्रेड का जो है जो आपका सीरियल का अमाउंट है, वो सबसे नीचे इसलिए दिया गया है क्योंकि वो एनर्जी का सोर्स है, और वो हमें थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो 6 to 11 सर्विंग
डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि मतलब 2 रोटी सुबह दोपहर शाम 2-2 रोटी ले ली तो आपका 6 सर्विंग्स आराम से हो जाती हैं। इसके अलावा बाकी और चीजें भी हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि वीकनेस हो रही है, मैं रोटी ज्यादा खा लेता हूँ या खा लेती हूँ तो वीकनेस दूर हो जाएगी। ऑब्वियसली एट द टाइम हो जाएगी, बट उसकी वजह से आपकी जो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपकी बॉडी में स्टोर हो रही है वो फैट बनकर बाद में आपको ही प्रॉब्लम करेगी। तो इसलिए एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बाकी आपका 2 to 3 सर्विंग आपकी फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल हो गया, सैलेड की फॉर्म में लीजिए, रॉ फ्रूट्स लीजिए। रॉ वेजिटेबल फ्रूट्स वुड बी वेरी वुड बी मोर बेटर कि उनमें आपका कुछ भी जो फाइबर है वो आराम से मिलता है, उसकी अमाउंट बल्क होती है, तो आपका जो सटाइटी है वो आपकी बैलेंस हो जाती है। जो मीट प्रोडक्ट या आपका जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपका बीन्स हो गए या फिर नॉन वेज के आइटम्स हो गए या फिर पल्सेस हो गई, तो एटलीस्ट 2 bowls ऑफ दाल लीजिए। अब दाल की फॉर्म में हो सकता है आप मिस्सी रोटी बना लीजिए या फिर आप स्प्राउट्स खा लीजिए, तो वो आप मॉडिफाई करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कोई भी अगर बैलेंस डाइट बता रहे हैं कि अगर कोई भी आपको डाइटिशियन बता रहे हैं तो वो फैंसी डाइट होगी वेट लॉस के लिए या कुछ अलग ही डाइट होगी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए। जो भी आपके घर में बनता है उसमें आप देखिए क्या लैकिंग है, उसको आप या तो रिप्लेस करिए या इंक्लूड करिए चीजों को कि क्या मैं खा रहा हूँ। पराठे खा रहे हैं तो रोटी खाइए। अगर आप बहुत ग्रेवी ऑयल वाली सब्जी खा रहे हैं तो ऑयल कम करिए, क्योंकि आपकी बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं सारा बॉडी में स्टोर हो रहा है बाद के लिए, और बाद में आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। फैट हो गया आपकी जो आपकी डाइट में है तो 3 to 4 टीस्पून वुड बी सफिशिएंट, मतलब 15 to 20 ml पर डे आपका सफिशिएंट है। आपका 500 to 600 ml पर हेड पर मंथ होना चाहिए। सो आप ये आज जाकर किचन में देखिए आपका महीने भर का जो आपका ऑयल कंजम्पशन है पूरा फैमिली का किस हिसाब से हो रहा है। ये अगर ज्यादा हो रहा है आधा लीटर से तो इट मीन्स आप ज्यादा ले रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप बाहर से भी ले रहे हैं तो वो आपका ऑयल कंजम्पशन इंक्रीज करता है, जो कि ठीक नहीं है डाइट के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो डेली में आप क्या चेंजेस कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं एज कम्पेयर टू सिंपल वन। कॉम्प्लेक्स में आपके सारे मोटे अनाज आ जाते हैं, जैसे बार्ली, दलिया हो गया या होल गेहूं हो गया, वो हो गया, बकवीट हो गया, या फिर आपका जो मिलेट्स हो गए, बाजरा, रागी, ये सारी चीजें वो ज्यादा इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है और अदर मिनरल्स ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज आपका जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे मिठाइयाँ हो गई, जैसे आपका वीट में से जो आपका मैदा निकलता है, वीट इज गुड, होल वीट। जो मैदा निकलता है वो खराब है क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, आपका सिर्फ कार्ब्स होता है और थोड़े बहुत आपके मिनरल्स होते हैं। दूसरा आपका शुगर हो गया, तो ये चीजें आपकी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। हाई फाइबर आपके डाइजेशन को स्लो करते हैं, तो आपकी भूख बहुत देर तक मेंटेन रहती है, बहुत जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है, एक तरह से आपको सटाइटी मिलती है, तो वजन भी आपका मेंटेन रहता है। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आपके इतने खराब चीजें होती हैं जैसे फ्राइड हो गया या फिर शुगर इंटेक ज्यादा हो गया, जो बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, जिसमें फैट डिपोजिशन के रिस्क होते हैं और आगे अल्टीमेटली डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर, हाइपरटेंशन, इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट। अब प्रोटीन में कैसे चूज करें? जो वेजिटेरियन है वो बीन्स, पल्सेस, स्प्राउट्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो उनके लिए अच्छे ऑप्शंस हैं आपके व्हाइट मीट में आपका चिकन, फिश आता है, एग्स और इंक्लूड होते हैं। रेड मीट में आपका जो मटन है, सॉसेजेस हैं, ये सब आते हैं, जिसमें आपका जनरली प्रोसेस फूड अगर है तो सॉल्ट का इंटेक बहुत होता है, उसमें सोडियम कंटेंट ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, कैलोरीज बहुत डेंस होती है, सो वो बॉडी के लिए ठीक नहीं है। बाकी जो वेजिटेरियन है, कहा जाता है कि वेजिटेरियन जो प्रोटीन होता है वो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि कुछ अमाइनो एसिड्स उसमें कम होते हैं, मीन्स वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, कुछ कमी होती है उसमें। सो जो वेजिटेरियन लोग हैं अगर वो पूरा प्रोटीन का अच्छे से 100% एब्जॉर्प्शन चाहते हैं तो सीरियल पल्सेस के कॉम्बिनेशन जरूर लें। जैसे सिर्फ ये नहीं कि आपने अच्छा मैं वेट लॉस पर हूँ तो रात को मैंने दाल खा ली और सैलेड खा लिया, सो वो आपका हेल्दी डाइट नहीं है। सो दाल खा ली, आप 1 रोटी ले लीजिए साथ में, या फिर आपका थोड़ा सा आधा कटोरी चावल ले लीजिए। दाल की क्वांटिटी ऑब्वियसली बढ़ाकर रखिए तो आपको ये पूरा प्रोटीन मिलेगा, अगर आप उसको हेल्दी बनाना ही चाहते हैं अपने डिनर को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो गुड फैट है, बैड फैट है, वो क्या होते हैं? गुड फैट में आपके जैसे गुड फैट में सैचुरेटेड फैट आता है, ऐसा नहीं है कि जो सैचुरेटेड फैट है वो सारे खराब है, बस क्रीम बटर वो थोड़े से खराब हैं। देसी घी एटलीस्ट 1 to 2 स्पून आप ले सकते हैं इफ यू डोंट हैव एनी हार्ट प्रॉब्लम। सो ज्यादातर कोशिश करिए अनसैचुरेटेड फैट का
इस्तेमाल ज्यादा करें। मूफा पूफा हो गया जिसमें मस्टर्ड ऑयल मूफा में, और आपका ऑलिव ऑयल वगैरह आ जाते हैं। पूफा में आपके अदर सेफ्लॉर ऑयल या फिर कैनोला ऑयल इंक्लूडेड है, जो कि हार्ट हेल्दी रखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उनमें अच्छे खासे होते हैं, और सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी कम होती है। बैड फैट में आपके आते हैं ट्रांस फैट, जो आपने देखा होगा बाहर भटूरे तल रहे हैं या समोसे फ्राई हो रहे हैं, जैसे सर ने बताया था, वो जो काला तेल हो जाता है उसमें ट्रांस फैट की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है और वो सीधे हार्ट को इफेक्ट करते हैं। मार्जरीन आपकी होती है जो जनरली कन्फेक्शनरी आइटम में यूज करी जाती है, जो बेकरी आइटम है उसमें, वो भी आपका सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है। डालडा घी ऑल्दो अब बंद हो चुका है, बट कहीं कहीं मैंने देखा है मिलता है। सो डालडा घी आपका मॉडिफाइड जो सैचुरेटेड फैट होता है, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, वो भी हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है। सो उसका सेवन भी बंद करना चाहिए। ये आपका कुछ गाइडलाइंस आपको थोड़ा सा आइडिया देंगी कि कौन से ऑयल्स आप चूज कर सकते हैं। तो जिसमें येलो, मस्टर्ड और ब्लू लाइन ज्यादा है मतलब वो हेल्दी है, जिसमें रेड लाइन ज्यादा है वो अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि वो सैचुरेटेड फैट उसमें ज्यादा है। नेक्स्ट साइड प्लीज। वेजिटेबल मैं मना नहीं करूंगी, स्टार्ची वेजिटेबल, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल सारी अच्छी होती हैं। अगर आपको कोई डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है या कोई ओबेसिटी का प्रॉब्लम नहीं है तो उसी हिसाब से चूज करें। सारी वेजिटेबल्स में बहुत अच्छे मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स होते हैं। ऑब्वियसली आलू हो गया या फिर आपका शकरकंदी हो गया, उसमें फाइबर की क्वांटिटी थोड़ा सा कम होती है एज कम्पेयर टू अदर वेजिटेबल्स। तो अगर वेट लॉस के लिए सोच रहे हैं, डायबिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम की पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो ट्राई टू हैव मोर ऑफ द ग्रीन लीफी वेजिटेबल या फिर रेडिश वगैरह या फिर कैरेट, इन चीजों का सेवन ज्यादा करें। नेक्स्ट है, फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स हाई फाइबर होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स बहुत अच्छे होते हैं। बट जैसे अंगूर, आम, केला, चीकू, इसमें ये कैलोरी डेंस होते हैं, तो इनका थोड़ा क्वांटिटी कम कर सकते हैं अगर आप वेट लॉस पर हैं। बाकी हार्ट प्रॉब्लम या फिर डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो कुछ फ्रूट्स अवॉइडेड होते हैं, तो उनका ध्यान रखें। बाकी सारे फ्रूट्स अच्छे हैं, और जूसेस अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप जूसेस ले रहे हैं तो आप एक डेंस कैलोरी ले रहे हैं और फाइबर उसमें नहीं आ रहा है। ऑल्दो मिनरल्स, विटामिन सब कुछ आ रहे हैं, बट आपका फाइबर नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपको उसको क्वांटिटी को ज्यादा लेना पड़ता है। एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझाती हूँ कि अगर आप मौसम्बी खा रहे हैं तो 2 मौसम्बी वुड बी इनफ, या 2 संतरास वुड बी इनफ, क्योंकि फाइबर है, अंदर पेट में जाएगा, आपका पेट फुल हो जाएगा और आपको भूख नहीं लगेगी, थोड़ी देर के लिए आपकी सैटिस्फैक्शन मेंटेन होगी। बट अगर आप जूस पीने जाएंगे तो एटलीस्ट 4 या 5 मौसम्बी का जूस स्क्वीज आउट करना पड़ेगा। आपका जो इंपॉर्टेंट फाइबर था वो आपका लूज हो गया उसमें। ऑल्दो आपको सारी इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स, विटामिन्स है वो मिल गए, बट फाइबर लूज हो गया, कैलोरीज इंक्रीज हो गई आपकी, जो कि जरूरत नहीं है उसमें। और फाइबर एटलीस्ट 20 से 30 ग्राम पूरे दिन में लेना चाहिए, और वो आपकी स्टमक हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह को रिड्यूस होने से कॉन्स्टिपेशन होने से बचाते हैं। दूसरा, बहुत सारे जो इंटेस्टाइनल कैंसर हैं उनमें उनकी भी रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटेस्टाइन की वो एक तरह से सफाई कर देते हैं। तो फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट में। नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे अभी नट्स की बात हुई थी, जैसे हैंडफुल, एक सर्विंग नट्स वो आपको लेना चाहिए। अब हैंडफुल का मतलब बहुत गलत तरीके से निकालते हैं लोग। हैंडफुल का मतलब होता है जितनी आपकी मुट्ठी बंद हो रही है, तो वो एक सर्विंग हो जाती है, जिसमें सारे आपके नट्स इंक्लूड हो गए हैं। आलमंड्स, वॉलनट्स, थोड़ा बहुत कैशू भी ले सकते हैं, बट बहुत ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट उसमें ज्यादा होती है। बाकी अदर नट्स, और अगर वो सॉल्टेड नहीं है तो वो आपके लिए अच्छे हैं, तो नॉन सॉल्टेड जो है वो वाले नट्स प्रयोग में लाएं। और हैंड जब आपका पूरा क्लोज फिस्ट हो जाए, दैट इज द राइट अमाउंट कि आप वो नट्स ले सकते हैं। ये नहीं कि आपने उठाया और जितना हाथ में आ रहा है उतना ले रहे हैं, अगेन आपका कैलोरी इंटेक बढ़ जाएगा। ऑल्दो प्रोटीन इसमें अच्छा होता है, मिनरल्स, विटामिन सब अच्छे होते हैं। अगर डेयरी की बात करी जाए, कोशिश करिए कि लो फैट डेयरी हो। योगर्ट बहुत अच्छा है आपके स्टमक के लिए, क्योंकि इसमें लाइव बैक्टीरियाज होते हैं, और आपकी अगर गट हेल्दी है तो आपकी इम्यूनिटी हेल्दी है और आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपको डिजीजेस होने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब अगर जो भी कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, तो पहले उसके प्लीज जो इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर उसका कैलोरी इंटेक है वो जरूर देखें, क्योंकि आधे में तो आपके इसी में से हट जाएंगे। जब आप उसको पी रहे होते हैं अच्छा बहुत लगता है, बहुत आपको रिफ्रेशिंग मिल जाता है, बट अगर आप उस कंटेंट पे जाएंगे ना, आप इतना रिग्रेट करेंगे कि मैंने इतना शुगर ले लिया।
ऑब्वियसली आप अगर एक चाय ले रहे हैं उसमें 1 या 2 चम्मच से ज्यादा नहीं लेंगे, या 1 गिलास दूध में 1 या 2 चम्मच से ज्यादा नहीं लेंगे। बट इसके थ्रू आप एक पूरी बॉटल 600 ml एक बारी में ले लेते हैं, और शुगर देखिए कितना पहुंचता है। और ज्यादा शुगर लेना ना बॉडी के लिए इसलिए हानिकारक होता है क्योंकि वो आपकी ना हीलिंग पावर कम कर देती है, और अगर बॉडी हील ही नहीं हो पाएगी तो वो रोगों के लिए एक खुली चुनौती है कि आपको डिजीजेस लगेंगी। अब इसके अलावा जो लेफ्ट साइड पे जो आपके ऑप्शंस है, कोशिश करिए वो लीजिए। जैसे कोल्ड कॉफी हो गई, शुगर अवॉइड करिए। आपका सत्तू हो गया, जलजीरा हो गया, बटर मिल्क है, फ्रूट शेक्स हो गए विदाउट शुगर, लेमन वाटर हो गया, कोकोनट वाटर है, ग्रीन टी, हर्बल टी है, कोको मिल्क है। सो दीज आर दी ऑप्शन जो बेटर हैं एज कम्पेयर टू दिस, और ये भी इजिली अवेलेबल होते हैं। वो बस आपको इजिली दिख जाते हैं इसलिए आप उसकी तरफ जाते हैं, तो अवॉइड देम। नेक्स्ट स्लाइड। अब खाना पीने के ध्यान में रखने के साथ साथ आपने एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी की जो एंड्योरेंस पावर है वो बहुत जरूरी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कम से कम 5-10 मिनट, अगर वॉक पर भी जा रहे हैं उससे पहले स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मसल पुल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप जैसे वॉक करने जा रहे हैं, आने के बाद आपको थकान और ज्यादा होगी, तो पहले थोड़ा सा वार्म अप स्ट्रेचिंग करके जाइए। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग वगैरह वो कर सकते हैं। एनारोबिक एक्सरसाइज जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह या फिर नॉर्मल पुशअप्स वगैरह, दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू कैन डू एट होम। एटलीस्ट 30 मिनट ऑफ एक्सरसाइज 5 days a week is required as compared to guidelines. 7,000 steps should be maintained in a day, और वो आपकी हेल्थ पर बेनिफिशियल इफेक्ट डालेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो स्ट्रेस, मेजरली सारी जो एडिक्शन है, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्ट्रेस से ही आते हैं। तो स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करा जाए? आपने पार्क्स में देखा होगा, जो अंकल्स होते हैं वो जोर जोर से हंस रहे होते हैं, क्योंकि वो एक्टिविटी करने से आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो निकल रहे होते हैं। आपके हैप्पी हार्मोन्स को आप खुद ही इनिशिएट कर सकते हैं, अच्छा म्यूजिक सुन के, पेट्स के साथ खेल के, गार्डनिंग करिए, थोड़ा सा वॉक। Miss Sandhya, can we wind it up? Can you wind it up fast because we need to yeah, talk time is questions. it's going. This is last slide. Okay. हाँ, so अगर आपको ये एक्टिविटी करने पर अगर हैप्पी हार्मोन्स निकल रहे हैं तो ट्राई करिए कि इन एक्टिविटीज को थोड़ा इंटेंशनली करिए, सो दैट आपके जो हैप्पी हार्मोन्स है वो निकले और आपका स्ट्रेस कम हो। सो आप उस जगह डाइवर्ट नहीं होंगे स्मोकिंग या एडिक्शन के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So I want to conclude my slides over here. So keep everything in the balance. The excess of everything is dangerous. So कुछ भी अगर आप जरूरत से ज्यादा करते हैं तो वो आपके बॉडी के लिए हानिकारक है, उसको प्लीज अवॉइड करें और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं। थैंक यू सो मच। Thank you, Ms. Sandhya. I think that was a pretty detailed presentation that you made. Thank you very much. But I'll just ask you a brief question and please give me a brief reply. In your slide presentation, you had said that social networking can release stress. I presume you're mentioning about physical social networking because these days youngsters can misunderstand this as a networking online. Can you repeat again? I didn't get you. In your slide, I'll quote you, you said, social networking is one form which can relieve stress. In these days, youngsters misunderstand social networking as networking on smartphones, which Dr. Chaturvedi was referring is pretty dangerous. So can you just clarify what exactly is social networking? सोशल नेटवर्किंग इज लाइक कि जो आप नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। ऑल्दो सोशल नेटवर्किंग में बहुत सारी चीजें आती हैं कि आपका जो अच्छी क्या कहते हैं, नेट सर्फिंग हो गई, या ये किसी चीज को अगर जानने के लिए अगर आप सोशल नेटवर्किंग कर रहे हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। और अगर आप उसी पर नेटफ्लिक्स देखे जा रहे हैं या आप अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसको किसी और चीज में आप लगा सकते हैं। सो सोशल नेटवर्किंग इस तरीके से आपको हार्मफुल इफेक्ट दे सकते हैं, टाइम वेस्ट, आईज में प्रॉब्लम, और आप अपनी जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। आप अगर 4 लोग हैं घर में, चारों मोबाइल पर बैठे हुए हैं, तो आपका जो फैमिली टाइम है, क्वालिटी फैमिली टाइम है, वो नहीं मिल रहा है। आपका एक बॉन्डिंग फैमिली से ही नहीं हो पा रही है, और फैमिली से जो बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है उसकी वजह से स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से आप दूसरे एडिक्शंस के थ्रू तरफ जा रहे हैं। Yeah, got it. Just another question just I wanted to ask you briefly was, you quoted a lot of studies which showed that smoking is coming down in UK, Australia and other places. Do you have any Indian study? Not right now. I need to check it. If there would be, so I'll be definitely including in that. What is your feeling? Is it increasing or decreasing? As Dr. Chaturvedi said, smoking is very, very dangerous.
I think it is increasing क्योंकि ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है. I think in India we do not have any data at the moment, or published data in any journal or anything. But I think the trend is still increasing, to my mind, with my experience, I can say, Dr. which is not a Chaturvedi, good thing. Dr. Chaturvedi, what were the factors for bringing down smoking in UK and other places? Was it education? Was it counseling? What was it? All the things together, it is education, but counseling and massive public awareness program by the government, especially in Sweden. So to make people aware, and counseling camps, counseling in a war footing. So I think that is what is required today in our country also. No, is there any beginning towards this in India? There are some centers, sporadic areas, smaller areas, but there is not a very massive, campaign by either the government or any organization. What ICIHE is doing, I think it is taking a first step in this direction, and I think slow हमना पहला कदम है, हो सकता है आगे चल के journey of 1,000 miles starts from the first step, and I think ICIHE is doing a good job and probably making people aware. Once they get aware, they start acting, become part of their habit and a part of their character. That's great. That's great. Ms. Dipi Prakash, I'll come to you. Dr. Chaturvedi had mentioned that, about the Delhi belly and how the waistline is increasing in India, including in children also, for example, in Delhi and other places. Battle of the bulge. Battle of the bulge, yes. What you have temporarily on your lips is permanently on your hips. That's what they say. That, that's why we should we don't have control of our diet. Ms. Dipi Prakash, I just wanted to ask you that, like smoking, sitting is also supposed to be just next to smoking. How dangerous is this? It's really very dangerous, Mr. Shankar, कि जैसे कि जो भी अभी यहाँ पर बात हो रही थी, वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, हम कितनी भी चीजों की बात कर रहे हैं, जैसे सबसे ज्यादा हम स्मार्टफोन एडिक्शन की बात कर रहे थे, या जो लाइफ चेंज हो रही है, और जैसे कि अभी बैठने की बात कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही हो रही है, क्योंकि हम घंटों बैठ करके अपने स्मार्टफोन पर निकालते हैं. आई वॉज वेरी सरप्राइज, फ्यू डेज बैक आई जस्ट फाउंड अ रील ऑन इंस्टाग्राम कि डू लेजी एक्सरसाइज टू रिमूव योर बेली फैट. जस्ट लाई डाउन, सी योर मोबाइल एंड जस्ट मूव योर लेग्स. सो इतनी ज्यादा लोगों को लेजी एक्सरसाइज मैंने कभी अपने लाइफ में, आई वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट वर्ड. तो ये जो बैठने वाली बात कर रहे हैं, इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि हमारा बॉडी है एक, अगर हम सिस्टम की बात करें, हमारे स्केलेटल सिस्टम की, और उसमें सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं स्केलेटन सिस्टम के अंदर. अगर हम अपने मशीन्स को, या जो हमारे जॉइंट्स है, अगर उसको मूव नहीं करेंगे, सबसे पहली बात है, जैसे कि कार को अगर हम गराज में छोड़ दे बहुत लंबे टाइम तक, तो रखे रखे उसकी टायर खराब हो जाती है. ये सभी लोग समझते हैं, चाहे वो कार हो चाहे वो स्कूटर हो. अगर उसकी सर्विसिंग नहीं हुई, उसको कहते बीच में चलाओ तो उसकी बैटरी ठीक हो जाएगी, उसको स्टार्ट करके थोड़ा सा चला दो, अगर घर में गाड़ी पड़ी है, नहीं तो उसकी बैटरी डिश हो जाएगी. दीज आर द नॉर्मल सेंटेंसेस वी यूज इन आवर डेली लाइफ. वी हैव टू अंडरस्टैंड. सिमिलरली, इफ वी विल नॉट मूव फ्रॉम आवर चेयर, our sitting position, we will just start seeing our mobile, smartphones, WhatsApp, Reel, YouTube, everything we will watch, and we will not move from our, हमारे joints खराब हो जाएंगी, उनकी greasing खराब हो जाएगी, एंड लॉन्ग रन में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी. हमारे मसल्स वीन होते रहेंगे. इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग टू नो फॉर एवरीबडी कि हम जितना वॉक करते हैं, हमारे मसल्स उतने ही ग्रो करते हैं, और जो हमारी मसल्स होती हैं, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग आवर BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, एंड दैट हेल्प्स इन लूजिंग वेट. है ना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसे समझने की जरूरत है. इसके अलावा ऑब्वियसली हम मूव नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे ओबेसिटी आती जाएगी, हमारी हार्ट्स ठीक से वर्क नहीं करेगी, लथार्जी आएगी, हमारा दिमाग सुस्त होते जाएगा. ये सर पर एक क्वेश्चन है जो कि कंटिन्यूअस डिस्कशन में आ रहा है. ये जो प्रॉब्लम आ रही है, हमारी यंग जनरेशन, नॉट ओनली यंग जनरेशन, हमारी जनरेशन और हमारे जो बड़े जनरेशन है, वो भी एक स्मार्टफोन एडिक्टेड होते जा रहे हैं. तो अगर हम ये शुरू करें, जैसे कि सर ने, चतुर्वेदी सर ने बताया कि हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो 1,000 माइल की जर्नी बनेगी. अगर हमें ये कहीं से इनिशिएट करना है, वो इनिशिएट करना है पेरेंट्स से, न्यू पेरेंट्स से. जो बच्चे
जन्म ले रहे हैं और जो बड़े हो रहे हैं, चलो लेट हो चुका है, लेकिन अगर हम इस जनरेशन को ठीक करना शुरू करें, क्योंकि आज बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, क्योंकि वर्किंग उनकी अगर रिक्वायरमेंट भी नहीं है तो उनके लिए है कि फॉर लिविंग अ गुड लाइफ स्टाइल दे नीड लॉट्स ऑफ मनी। अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, हमें उसकी कितनी जरूरत है वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वी नेवर ट्राई टू एनालाइज। हमें जस्ट बहुत सारा पैसा चाहिए। उस बार्गेन में हम बच्चे तो पैदा करते हैं पर वी डोंट लुक आफ्टर देम प्रॉपरली। कि अगर शुरू से मैंने देखा है कि छोटे से बच्चे 3 मंथ्स के बच्चे भी मदर स्मार्टफोन बगल में लगाकर चली जाएंगी 8 मंथ्स के होते, एंड दे टेक दिस एज ए प्राइड कि मेरा बच्चा स्मार्टफोन को स्क्रॉल करके अपनी वीडियो लगा लेता है। इज दिस गुड? No. हमारी जनरेशन ने भी, हमने अपने बच्चों को खिलाया है गाना सुना के, रात को सोते समय लोरी सुना करके करा है, पर आज कोई उतना एफर्ट नहीं लगाना चाहता है। तो हमारी थॉट प्रोसेस बदलती जा रही है। अगर अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, और यही जो बच्चे हमारा सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम अपने बच्चों की अच्छी अपब्रिंगिंग करेंगे, ठीक है लाइफ में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, है ना, बोथ पेरेंट्स शुड गिव टाइम टू देयर चाइल्ड। हम कैसे करेंगे वो हमें एज ए फैमिली सोचनी होगी। न्यूक्लियर फैमिली है, आई एग्री विथ एवरीथिंग, बट अगर हमारे बच्चे को हम सही से अपब्रिंगिंग देंगे और उसकी हैबिट ही नहीं लगाएंगे, उनको खेलना सिखाएंगे। सोशल नेटवर्किंग इज अ रॉन्ग वर्ड, कि उसका मतलब सिर्फ सोशल मीडिया है। सोशल नेटवर्किंग मीन्स कनेक्टिंग विथ योर नेबर, कनेक्टिंग विथ योर फैमिली मेंबर्स। और ये बचपन से ये बच्चों को सिखानी होगी, क्योंकि हम चाहे मदर हो चाहे फादर हो, वो गलती तो हम खुद करते हैं। पूरे दिन हम मोबाइल के साथ हैं तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? इट्स अ वेरी Well said, स्मॉल Mr. स्टेप। well said, Ms. Divya. Again, we're just running short of time. But on a lighter note, I'll tell you these days we always say that children are born with remote in one hand and the smartphone on the other, and that is how they start growing up. And as what Dr. Chaturvedi said, it's a very dangerous trend. And as you mentioned, Ms. Divya Prakash, about laziness, on a lighter note, I would like to tell you that here in US, where I am, there is something called a lazy club, where all that you have to do is to be lazy. I hope that doesn't come to India and that we are safe from such influences. Thank you very much for this. It could have gone on and on, because this is a huge topic that we need to discuss. Each thing by itself is a topic. So thank you very much, Dr. Chaturvedi. Thank you very much, Ms. Divya Prakash. Thank you, Ms. Sandhya. And thank you all. And till the next episode, here is goodbye and have a nice day ahead. Thank you very much. Thank you all. Thank you so much. Thank you so much. Namaskar.